Hello students, today we are in 10th lecture of current electricity. We already worked hard in our previous 9 lectures. Now it's time to conclude our chapter. I have selected 12 miscellaneous MCQs and numericals. They are related to Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, Wheatstone's balancing condition, meter bridge, thermoelectricity, etc. This will give you sufficient amount of practice and boost your confidence that will enable you to excel in your examinations. So let's start our mission of solving current, electricity, MCQs and numericals. In a copper iron thermocouple, the temperature of cold junction is 20 degrees Celsius. Temperature of cold junction यानी theta C is given as 20 degrees Celsius. And the neutral temperature is 280 degrees Celsius students. Neutral temperature 280 degrees Celsius मतलब थीटा n दिया हुआ है मुझे 280 डिग्री सेल्सियस. यस. कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन स्टूडेंट्स. टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन मतलब थीटा आई. थीटा आई इज क्वेश्चन मार्क राइट नाउ. So we will use that average wala formula students. Neutral temperature is the arithmetic mean of temperature of cold junction and temperature of inversion. That means theta n is theta c plus theta I the whole upon 2. Theta n का वैल्यू स्टूडेंट्स मुझे दिया हुआ है 280 डिग्री सेल्सियस. लेट मी सब्स्टिट्यूट. 280 इज इक्वल्स टू थीटा सी स्टूडेंट्स 20 प्लस थीटा आई एज इट इज द होल अपॉन 2. सॉल्व कर ले हम इसे. यू गेट 280 इंटू 2 स्टूडेंट्स, यू विल गेट 560 इज इक्वल्स टू 20 प्लस थीटा आई. स्टूडेंट्स थीटा आई मुझे मिल जाएगा 540 डिग्री सेल्सियस. दैट्स वाई इट विल मैच विथ ऑप्शन बी स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी 540 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन. If the cold junction of a thermocouple is kept at 0 degree Celsius, theta C students 0 degree Celsius, temperature of cold junction 0 degree Celsius, and hot junction is kept at T degree Celsius, temperature of hot junction is T. Okay, and we have to find out relation between neutral temperature Tn and temperature of inversion Ti. तो स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, थीटा एन न्यूट्रल टेम्परेचर को लिखना होगा टी एन एज पर दिस एमसीक्यू, एंड थीटा आई टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज टेकन एज टी आई. एवरेज वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स, थीटा एन इज इक्वल्स टू थीटा सी प्लस थीटा आई द होल अपॉन 2. लेट अस डू दैट सब्स्टिट्यूशन. थीटा एन मतलब स्टूडेंट्स टी एन is equals to 0 plus Ti the whole upon 2. Yes, so get Tn is equals to Ti by 2. Tn is equals to Ti by 2. It will match with option B students. Important MCQ students. The thermo EMF E in volts of a certain thermocouple is found to vary with temperature difference theta in degree Celsius between the two junctions according to the relation E is equals to 30 theta minus theta square by 15. E is equals to 30 theta minus
थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 15, ये मुझे थर्मो ईएमएफ का फॉर्मूला दिया हुआ है स्टूडेंट्स, राइट। द न्यूट्रल टेम्परेचर फॉर द थर्मोकपल विल बी हाउ मच। स्टूडेंट्स, न्यूट्रल टेम्परेचर मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे थीटा एन कैलकुलेट करना है, ओके। अब स्टूडेंट्स, थर्मो ईएमएफ का थीटा के साथ जो रिलेशन होता है वो हम जानते हैं हमारे थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर के हेल्प से। थर्मो ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा theta square. Using this relation and comparing the two equations, we can say alpha का value is 30, yes, and value of beta by 2 is equals to minus of 1 by 15. Solve कर ले students, आपको मिल जाएगा value of beta. You will get beta is equals to minus of 2 by 15, yes. अल्फ़ा 30, बीटा मुझे मिला स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 2 बाई 15, ओके। स्टूडेंट्स, हमें कैलकुलेट करना है न्यूट्रल टेम्परेचर यानी थीटा एन। थीटा एन होता है स्टूडेंट्स माइनस ऑफ, यस, थीटा एन इज माइनस ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा, सो इट इज़ माइनस ऑफ स्टूडेंट्स अल्फ़ा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 30 डिवाइड बाय बीटा स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 2 बाई 15। कैंसलेशन कर लीजिए आप, एक तो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस। 2 into 15 will give you 30, so overall you will get students 15 multiplied by 15, obviously positive, yes. 15 into 15 you will get 225 students, 225 degrees Celsius. This is the value of theta n students. Neutral temperature मुझे मिल गया theta n, how much is that? 225 degrees Celsius. That's why it will match with option C. The temperature of inversion of a thermocouple is 620 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स, मतलब मुझे इन्वर्जन टेम्परेचर थीटा आई दिया हुआ है 620 डिग्री सेल्सियस, यस, एंड न्यूट्रल टेम्परेचर थीटा एन इज 300 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, मतलब मुझे थीटा सी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन कैलकुलेट करना है। थीटा सी इज क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स, हमारा वो एवरेज वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। थीटा एन न्यूट्रल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू थीटा सी प्लस थीटा आई द होल अपॉन 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स। थीटा एन यानी स्टूडेंट्स 300 इज इक्वल्स टू थीटा सी स्टूडेंट्स, थीटा सी एज इट इज, थीटा आई आपको दिया हुआ है 620 द होल अपॉन 2। सॉल्व कर ले स्टूडेंट्स इसे, you will get 600 is equals to theta c plus 620. So students, you will get theta c is equals to 600 minus 620, that has to be minus 20 students, minus 20 degrees Celsius. This will match with option C. A question from your textbook. Kirchhoff's first law, that is summation of I equals to 0 at a junction, deals with the conservation of. Students, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे our first lecture of a chapter current electricity. हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में अबाउट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का मतलब हुआ स्टूडेंट्स किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज KCL स्टूडेंट्स। हम जानते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ इज गोइंग टू डील विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का मतलब होता है स्टूडेंट्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में हम जिसे कहते हैं KVL, यस KVL। दिस is going to deal with law of conservation of energy, and this question in front of us is quite simple. ये तो सिर्फ फर्स्ट लॉ पूछ रहा है स्टूडेंट्स।
First law, Kirchhoff's first law will deal with law of conservation of charge. It will match with option A, students. A question from your textbook again. 4 resistances 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm and 15 ohm form a Wheatstone's network. What shunt is required across 15 ohm resistor to balance the bridge? So it is quite obvious, students, right now the bridge is not balanced. अब हमने हमारे Wheatstone's network के लेक्चर में पढ़ा है about Wheatstone's balancing condition, that is WBC, R1 upon R2. Wheatstone's balancing condition R1 upon R2 is equals to R3 upon R4 बच्चों. R1 upon R2 is equals to R3 upon R4. This is my Wheatstone's balancing condition, that is WBC, students. अब डेटा के हिसाब से स्टूडेंट्स हम ऐसा कह सकते हैं that R1 is equals to 10 ohm, R2 is again 10 ohm, yes, 10 ohm, students. How much is R3, students? R3 is 10 ohm, yes. ये जो फोर्थ रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स R4, वो हमें दिया हुआ है 15 ओहम, यस 15 ओम स्टूडेंट्स. अब R1, R2, R3, R4 को आप ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देख ले बेटा. ऑब्वियस ही बात है ये Wheatstone's बैलेंसिंग कंडीशन को ओबे नहीं करेगा. बच्चों R1 अपॉन R2 कितना होगा? 10 अपॉन 10 मतलब 1. R3 अपॉन R4 देखो बच्चों 10 अपॉन 15 मतलब 2/3. तो बच्चों ये अभी Wheatstone's बैलेंसिंग कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा है. तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें ये जो 15 ओहम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पैरेलल में एक शंट कनेक्ट करना पड़ेगा. यस, पैरेलल में एक शंट कनेक्ट करना पड़ेगा. हमें रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स 15 ओहम से 10 ओहम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस, वी हैव टू कन्वर्ट 15 ओहम इनटू स्टूडेंट्स 10 ओहम. मतलब रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है. सीरीज या पैरेलल? पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स. यस, लेट मी कनेक्ट 15 ओहम के साथ X रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें 15 ओहम के साथ रेजिस्टेंस X को पैरेलल में कनेक्ट करना है. एंड हमें आउटपुट कितना चाहिए स्टूडेंट्स? आउटपुट हमें चाहिए स्टूडेंट्स 10. तभी तो हमारा Wheatstone's बैलेंसिंग कंडीशन ओबे हो पाएगा. यस, 15 ओहम कनेक्टेड इन पैरेलल विद X ओहम. आउटपुट में हमें मिलने वाला है स्टूडेंट्स 10 ओहम. ओके, सो 15 को X के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर लूँ बच्चों, हमें 10 मिल जाएगा और हमारा ये न्यूमेरिकल फिनिश हो पाएगा. यस, चलिए बच्चों सॉल्व कर ले इसे. स्टूडेंट्स पैरेलल का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी 15 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स. बच्चों प्रोडक्ट अपॉन सम 15x डिवाइड बाई 15 प्लस एक्स. आउटपुट में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 10. चलिए कैंसलेशन कर ले. 5 3s are 15, 5 2s are 10. Yes, 3x is equals to students you will get 30 plus 2x. 2x. ओके, चलिए सॉल्व कर ले स्टूडेंट्स. 3x माइनस 2x यानी बच्चों x आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 30 ओहम. यस, सो x इज इक्वल्स टू 30 ओहम मिला. मतलब ये बच्चों हमें 15 ओहम के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, तब जाके हमारा ये सर्किट Wheatstone's बैलेंसिंग कंडीशन को ओबे करेगा बच्चों. 30 ओहम यानी ऑप्शन डी. अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये, डी 30 ओहम. An important question from your textbook related to meter bridge students, यानी वो एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone's नेटवर्क वाला लेक्चर. इंपॉर्टेंट लेक्चर था स्टूडेंट्स ये, राइट. स्टूडेंट्स हमने जो फॉर्मूला देखा था वो लेक्चर में, दैट फॉर्मूला इज दिस वन. अननोन रेजिस्टेंस X होता है जो हम लोग लेफ्ट गैप में कनेक्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय
नोन रेजिस्टेंस R होता है जिसे हम राइट गैप में कनेक्ट करते हैं. X अपॉन R इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंस, राइट, दैट इज LX अपॉन LR स्टूडेंट्स, LX अपॉन LR. अब हम जानते हैं बच्चों मीटर ब्रिज है यानी टोटल लेंथ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है. थोड़ा और इसको इजी कर दीजिए. राइट हैंड साइड बच्चों LX डिवाइड बाय व्हाट इज LR. टोटल लेंथ इज बच्चों 100 सेंटीमीटर. सो व्हाट विल बी LR? इट विल बी 100 माइनस LX. तो बच्चों फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? X अपॉन R इज इक्वल्स टू LX डिवाइडेड बाय 100 माइनस LX. ये लीजिए फॉर्मूला तैयार हो गया स्टूडेंट्स आपके सामने. ये X अपॉन R इज इक्वल्स टू LX डिवाइडेड बाय 100 माइनस LX. अब क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल. टू diametrically opposite points of the bangle are connected to the two terminals of the left gap of a meter bridge. left gap of a meter bridge को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. A resistance of 4 ohm is introduced in the right gap. 4 ohm is put in right gap. Okay, तो बच्चों R की तरह वैल्यू हो गया 4 ohm. Okay, what is the resistance of the bangle if the null point is at 20 centimeter from the left end? और एक बार इसको ध्यान से रीड कर लीजिए स्टूडेंट्स. लेंथी क्वेश्चन लग रहा है. यस, हमें बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड से जो लेंथ है स्टूडेंट्स, मतलब जो नल पॉइंट है वो है 20 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, R का वैल्यू दिया हुआ है, LX का वैल्यू दिया है, LR तो हम भी कैलकुलेट करेंगे इनडायरेक्टली. लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दैट. यस बच्चों LR. ओके स्टूडेंट, जो लेंथ दिया है वो है लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर. सो जो लेंथ राइट से होगा बच्चों उसको आप कह सकते हैं हाउ मच? 80 सेंटीमीटर. लेफ्ट से 20 मतलब राइट से स्टूडेंट्स 80 सेंटीमीटर. परफेक्ट, 80 सेंटीमीटर. ये आपका राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर हो गया बच्चों. आगे इसको और सोचते हैं. R का वैल्यू, LX का वैल्यू, LR का वैल्यू, सारे वैल्यूज़ आपको मालूम है. बट द प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स, आपने क्या किया है, आपने लेफ्ट गैप में कोई डायरेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है. ओके तो इसको थोड़ा स्टेप वाइज करते हैं स्टूडेंट. स्टेप वाइज. यस ओके स्टूडेंट्स, पहले तो मैं ये क्लियरली अज्यूम कर लूँ कि ये जो गोल्ड बैंगल है हमारा उसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. लेट अस से दैट रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल इज इक्वल्स टू X. मैंने कहा स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल को हम लोग X अज्यूम करेंगे. लेट अस से दिस इज दैट गोल्ड बैंगल स्टूडेंट्स. यस, आई एम रिप्रेजेंटिंग टू डायामेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स बच्चों. टोटल जो रेजिस्टेंस है गोल्ड बैंगल का टोटल बच्चों वो है X. सो फॉर अबो हाफ कैन आई से द रेजिस्टेंस विल बी X by 2. एंड व्हाट अबाउट लोअर हाफ? यस, इट इज़ द सेम X by 2. सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, अबो का जो हाफ X by 2 है एंड लोअर जो हाफ X by 2 है वो हमने इनडायरेक्टली पैरेलल में कनेक्ट किया है बच्चों. मैंने कहा पैरेलल, दैट मीन्स X by 2 एंड X by 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. स्टूडेंट्स, वो जो रेजिस्टर्स इन पैरेलल का शॉर्टकट फॉर्मूला है वो हमारी हेल्प करेगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों X by 4. X by 2 कनेक्टेड इन पैरेलल विद X by 2 इन द लेफ्ट गैप, राइट. आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है लेफ्ट गैप का X by 4 बच्चों. मैंने कहा X by 4. ओके तो चलिए स्टूडेंट्स, वो जो मीटर ब्रिज वाला फॉर्मूला था वो अभी यूज़ करने का टाइम आ चुका है. लेट्स अप्लाई दैट फॉर्मूला स्टूडेंट्स. X अपॉन R इज इक्वल्स टू LX डिवाइडेड बाय 100 माइनस LX. तो स्टूडेंट्स लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस बताइए X by 4 डिवाइड बाय राइट गैप का रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स 4 ओम, मतलब X by 4 द होल अपॉन 4 इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ स्टूडेंट्स दैट इज 20. यस,
20 डिवाइडेड बाय बच्चों 20 डिवाइडेड बाय 80। सिंप्लीफाई कर ले स्टूडेंट्स इसे, 20 इंटू 4 विल गिव यू 80, ये 4 वो 4 कैंसल हो जाएगा, आपको मिलेगा स्टूडेंट्स x बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 ओहम बच्चों। रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल आपको मिल गया 4 ओहम एंड इट विल मैच विथ ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी 4 ओहम। A voltmeter has a resistance of 30 ohm. Yes, capital R students, resistance of your voltmeter 30 ohm. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt having internal resistance 10 ohm students? Yes, हमसे पूछ रहे बच्चों रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर यानी V बेटा। अब हम जानते हैं यूजिंग ओम्स लॉ V होता है IR। हमें स्टूडेंट्स EMF स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है, EMF कैपिटल E से डिनोट कर दूं मैं, EMF इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल r स्टूडेंट्स विच इज 10 ओम। ओके, अब V इज इक्वल्स टू IR को यूज़ करने का टाइम आ गया बेटा। I जो है करंट है उसे मैं लिखने वाला हूँ EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, the whole into students capital R will remain as it is। वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते बेटा एक एक करके। V इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल R का वैल्यू स्टूडेंट्स 30 द होल अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r यानी स्टूडेंट्स 30 प्लस 10। सॉल्व कर ले इसे, टोटल कर ले बेटा, आपको मिलेगा V इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30 द होल अपॉन 40। ओके, द होल अपॉन स्टूडेंट्स 40। जीरो कैंसिल कर दिया मैंने, येस, 2 2 ज़ा 4 बाई सिंपल कैंसलेशन। 3 बाई 2 बेटा मतलब 1.5 बेटा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट दिस विल बी रीडिंग ऑफ योर वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वोल्ट मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम स्टूडेंट्स, कैपिटल R दिया हुआ है। What will be its reading? स्टूडेंट्स ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, रीडिंग यानी वोल्टेज V इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे I इंटू R। आगे पढ़ते हैं, EMF ऑफ द सेल 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 20 ओहम यानी स्मॉल r दे दिया है बेटा। V इज इक्वल्स टू, सिमिलर क्वेश्चन बच्चों थोड़ा स्पीड से करेंगे, I को क्या लिखेंगे EMF डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, the whole into students capital R will remain as it is। substitution बच्चा, V is equals to, yes, EMF ही बच्चों, EMF का वैल्यू मतलब 2 वोल्ट इंटू कैपिटल R 100 the whole upon कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्टूडेंट्स यानी 100 प्लस ऑफ 20। सॉल्व कर ले इसे आगे, yes, आपको मिलेगा स्टूडेंट्स ये 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। कैंसलेशन कर ले, ज़ीरो कैंसिल स्टूडेंट्स। 2 इंटू 6 को 12 कर दे बच्चों मतलब 10 डिवाइड बाय 6 बेटा, मतलब 10 डिवाइड बाय 6 को आप लिख दो 5/3 बेटा। 5/3 मतलब 1.666 मतलब 6 रिकरिंग है, राउंड ऑफ करके मैं लिख रहा हूँ 1.67 वोल्ट। वोल्ट मीटर विल शो अ रीडिंग ऑफ 1.6 वोल्ट बच्चों। Thirteenth question, a set of 3 coils having resistances 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel. This combination is connected in series with series combination of 3 coils of the same resistances. Calculate the total resistance and current through the circuit if a battery of EMF 4.1 volt is used for drawing current। Students, if you want to revise resistors in series and parallel कैसे solve करते हैं,
This question is a perfect example for that. You can revise series parallel combination using this single question. I will request you all to draw circuit diagram immediately after reading this question. Circuit diagram draw करें students. Okay, and then you can even check कि आपका डायग्राम सही है या आपने कोई सिली मिस्टेक कर दिया है जब मैं बना लूँ उसके बाद. 3 coils बच्चों, 10 ohm, 12 ohm, 15 ohm are connected in parallel. This combination is then connected in series with series combination of these 3 same coils of same resistances. Yes, you have to calculate the total resistance बच्चों. Yes, total resistance. चलिए फटाफट बच्चों 3 coil देखिए कौन से है. 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm कैसे कनेक्ट किए हैं हमने पैरेलल में. यस जल्दी बच्चों. यस, और फिर यही 3 को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है. टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है. यस, और बताइए करंट. यस, टोटल रेजिस्टेंस बच्चों मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. एंड ईएमएफ कितना है स्टूडेंट्स? ईएमएफ है 4.1 वोल्ट बैटरी का. आपको करंट आई भी तो कैलकुलेट करना है. I is equals to question mark बच्चों when EMF is 4.1 वोल्ट. यस, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ढूंढना है, करंट ढूंढना है बच्चों. चलिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम आ चुका है बच्चों. आप चेक कर लें आपने सही बनाया है या नहीं. फर्स्ट रेजिस्टेंस स्टूडेंट, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस. यस, ये तीनों को कैसे कनेक्ट करना है? पैरेलल में कनेक्ट करना है स्टूडेंट्स. वैल्यू स्टूडेंट्स, वैल्यूज़. यस, ये तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यूज़ देखिए स्टूडेंट्स. यस, 10 ओहम, उसके बाद 12 ओहम, लास्ट वाला स्टूडेंट्स 15 ओहम. 10 ओहम, 12 ओहम, 15 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. यस, और फिर बच्चों यही 10, यही 12, यही 15 हमने कैसे कनेक्ट किया है? आगे सीरीज़ में कनेक्ट किया है, सीरीज़ में. यस, चलिए मैं ड्रॉ कर दूँ बच्चों. Yes, first resistance students 10, second is 12, third is 15. ये लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है. वैल्यूज लिख दूँ स्टूडेंट्स में आपके साथ साथ. 10, yes, 12 and last one students 15. ओके, 10, 12, 15 बच्चों. ओके, चलिए लेट मी कंप्लीट दिस सर्किट. ओके, ईएमएफ स्टूडेंट्स मुझे दिखाना रहेगा. ईएमएफ का वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स. ईएमएफ का वैल्यू 4.1 वोल्ट. 4.1 वोल्ट वो भी तो ज़रूरी है बिकॉज हमें करंट आई भी तो कैलकुलेट करना है बच्चों. करंट आई इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. यस, ये लीजिए बच्चों बैटरी कनेक्ट हो रहा है. ये हमने सर्किट कंप्लीट कर लिया. बैटरी का वोल्ट बताइए बेटा. 4.1 वोल्ट. हाँ, इसके आगे मैं कन्वेंशनल करंट दिखा रहा हूँ स्टूडेंट सर्किट में. फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कन्वेंशनल करंट इज आए. ये भी तो हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स. ओके, तो चलिए बच्चों अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वो जो 3 रेजिस्टर्स हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं 10, 12, 15, 10 ओहम, 12 ओहम, 15 ओहम, इसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढ लूँ बच्चों. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. यस, किसका बेटा? 10, 12, 15 का बच्चों. मतलब रेजिस्टर्स इन पैरेलल का यूज़ करेंगे और फिर ये 10, वो 12 और वो 15 बच्चों, इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन बच्चों. चलिए रिवाइज करें. सीरीज़ कॉम्बिनेशन बच्चा कैसे करना है? सिंपली सभी रेजिस्टर्स को प्लस कर लें. मान लेते बेटा वो जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10, 12, 15 सीरीज़ का वो है R2 बच्चों. वो क्या हो जाएगा? 37 ओम. 10 + 12 + 15 ना बेटा, R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन का R2 बेटा 37 ओम. और बच्चों ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल वाला किसका? 10, 12, 15 वो है बच्चों R1. सो 1/R1 बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/10 + 1/12 + 1/15. तो बच्चों पहले दो मैं सॉल्व कर लूँ. 12 + 10 द होल अपॉन 120 + 1/15 remains as it is. You will get
22 divided by 120 plus 1 by 15, yes 1 by 15 बच्चों, आगे और सॉल्व करना है मुझे इसे। 22 डिवाइड बाय 120, यस 22 डिवाइड बाय 120 एज इट इज़ प्लस बच्चों 1/15 को हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में, तो मुझे 120 लाना है तो हम लिख देंगे बेटा 8/120। सो यू विल गेट 22 प्लस 8 मतलब 30 डिवाइड बाय 120 स्टूडेंट्स, मतलब 1/4। सो स्टूडेंट्स 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/4। सो R1 क्या होगा 4 ओहम। तो स्टूडेंट्स हमें R1 मिल गया 4 ओहम, यस। अब स्टूडेंट्स हमारे सर्किट में तो हमने ऐसा दिखाया है कि R1 एंड R2 सीरीज़ में है। सो फिनिशिंग टच दिया जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों, सीरीज़ का फॉर्मूला R1 प्लस R2 यानी 4 प्लस 37, व्हाट इज़ दैट स्टूडेंट्स, दैट विल बी 41 ओहम स्टूडेंट्स। सो ओवरऑल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो हमें मिल गया 41 ओहम। The numerical is not yet over students. We have to calculate current I also. Students current I कैसे ढूंढेंगे? current I का फॉर्मूला होने वाला है स्टूडेंट्स EMF का वैल्यू विच इज़ 4.1 वोल्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स, यस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 41 बच्चों। चलिए स्टेप वाइज दिखा दूं मैं आपको। I इज इक्वल्स टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी 4.1 डिवाइड बाई 41 बेटा, दैट इज 1/10 बच्चों। 1/10 यानी 0.1। करंट I मुझे सर्किट से मिल गया स्टूडेंट्स, करंट I 0.1 एम्पियर। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 10, अ बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. This is very important for connection purpose. The combination is used to send current through external resistance of 2 ohm. Calculate the current through this external resistance. तो जल्दी से मैं कनेक्शन दिखा दूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर 4 वोल्ट नीचे 1 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स मुझे क्लियरली पता है मुझे दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना था सेल को, और दूसरी बात लाइक पोल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस मैं रिप्रेजेंट कर दूँ स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट सेल इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम, यस। For cell number 2 also, that is internal resistance is 1 ohm, okay. External resistance बच्चों 2 ohm, okay. सर्किट पहले हम ठीक से ड्रॉ कर ले बच्चों, फिर सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है इफ़ यू आर थरो विथ KCL एंड KVL। ऊपर वाले से करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स I1, लोअर वाला मतलब 1 वोल्ट वाले से करंट फ्लो हो रहा है I2, ओके। And the current flowing through external resistance is I students, जो मुझे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, करंट I मुझे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स KCL KVL अप्लाई करना है भाई। सो आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि हम ठीक से पॉइंट्स को नाम दे दे स्टूडेंट्स, सो दैट हम प्रॉपरली KCL KVL यूज़ कर सकें, ओके। ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स मैं इसे A से रिप्रेजेंट कर दूँ, ओके A। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स A के बाद स्टूडेंट्स मैं यहाँ B रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, B, यस। फिर बेटा C, ओके D, उसके ऊपर स्टूडेंट्स E, ओके। मतलब ऊपर वाले लूप में आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट, ABCDE, ओके। अब ये नीचे वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ बेटा मैं, ओके F, एंड उसके पास मैं नाम दे दूँ स्टूडेंट्स इस पॉइंट को G, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स को नेमिंग दे दिया। नाउ वी कैन थिंक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ KCL एंड KVL। Students, look at point A. At point A,
incoming current is I1 as well as I2, outgoing current is I. So if we think about using KCL, यानी स्टूडेंट्स Kirchhoff's current law KCL application at point A, we have to use KCL at point A. Point A is a junction students, हम जानते हैं total incoming current is I1 plus I2 while outgoing current is I. So incoming current is equal to outgoing current, equation number 1 students. I1 plus I2 is equals to I, equation number 1. Now students, I will use KVL students, उसके लिए मैं अपर लूप का यूज़ करने वाला हूँ. I have to apply KVL in first of all upper loop. Let us try to apply KVL students, step wise करेंगे इसको. Apply KVL in the loop. लूप का नाम स्टूडेंट्स हम ए से स्टार्ट करेंगे. ए बी सी डी ई ए. ओके, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हमें फिनिश भी करना है बच्चों. ओके, ए बी में देर इज़ नथिंग बच्चों. बी टू सी में देर इज़ वोल्टेज बच्चों 1 वोल्ट, तो मैं वो 1 लिख दूँ बच्चों, 1 वोल्ट EMF, राइट. रेजिस्टेंस 1 ओम, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आता है बच्चों वोल्टेज, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. करंट इज I2, रेजिस्टेंस इज 1 बेटा, 1 इंटू I2. आगे बढ़ते बच्चों, E2A में देर इज रेजिस्टेंस 1 ओम, उसके अक्रॉस वोल्टेज IR, करंट बेटा I1, तो I1 इंटू 1 यानी 1 I1, और वोल्टेज है स्टूडेंट्स 4 वोल्ट. KVL का राइट हैंड साइड होता है 0. नाउ साइन कन्वेंशन कम्स इनटू पिक्चर स्टूडेंट्स, राइट बेटा. वी आर गोइंग फ्रॉम B टू C, तो हम जा रहे थे +2 -1 वोल्ट यानी -1. ओके, I2 में चेक करें बच्चों, 1 I2 मतलब लूप जा रहा है B टू C, करंट जा रहा है उल्टो यानी पॉजिटिव साइन बेटा. लूप जा रहा है स्टूडेंट्स I1 के लिए, 1 I1 के लिए लूप जा रहा है. E2A, करंट भी जा रहा है E2A, डायरेक्शन सेम है, इसके लिए माइनस. एंड बच्चों वोल्टेज 4 वोल्ट, वी आर गोइंग फ्रॉम E2A मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम -2 प्लस, -2 प्लस तो +4 बच्चा. लेट मी रीअरेंज दिस. -I1 प्लस I2 प्लस 3 इस तरफ होगा बच्चों, राइट हैंड साइड में आप ट्रांसफर करके उसे -3 लिख दीजिए. दिस इज योर इक्वेशन. नेक्स्ट आई थिंक इक्वेशन 2 है ये आपका. स्टूडेंट्स, वी नीड वन मोर इक्वेशन. That is the reason we will think about application of KVL one more time. Now we have to apply KVL, yes, in a lower loop because we need one more equation students. That KVL we will apply in the loop students. Yes, naming start कर दूँ मैं. I will start with A, फिर F बच्चों, फिर G, फिर बताइए मुझे A F G, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स. यस, AFG, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स D, फिर बताइए मुझे C, फिर B, और फिर लास्ट में बच्चों ए, जहाँ पे स्टार्ट किया वहाँ पे फिनिश भी करना है. ओके, सो द लूप इज AFGDCBA. ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ 2 ओहम के अक्रॉस आएगा वोल्टेज, V इज इक्वल टू IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस 2 इंटू I स्टूडेंट्स. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ C2B में रेजिस्टेंस 1 ओम, उसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा बच्चों 1 इंटू I2, और फिर वोल्टेज बचा 1 वोल्ट, राइट. एंड आपके KVL का राइट हैंड साइड होगा 0. अब साइन कन्वेंशन बेटा, यू आर गोइंग फ्रॉम F टू G, लूप जा रहा है, करंट भी सेम डायरेक्शन, इसके लिए माइनस. बच्चों लूप इज गोइंग फ्रॉम C टू B, करंट भी तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, C टू B सेम डायरेक्शन है, इसके लिए माइनस. और बच्चों ये 1 वोल्ट, यू आर गोइंग फ्रॉम C टू B यानी यू आर गोइंग फ्रॉम -1 टू +1, आप फिनिश कर रहे हैं +1 पे, तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा बच्चों. -2 I को स्टूडेंट्स मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ I1 प्लस I2 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. ओके, माइनस एज इट इज़ बच्चों 1 I2 मतलब I2 एज इट इज़, +1, दिस विल गिव यू राइट हैंड साइड का 0, मतलब -2 I1 स्टूडेंट्स, -2 I2. थोड़ा स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ मैं. ओके,
माइनस I2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 था, मैंने +1 को राइट में ले गया, मुझे -1 मिल गया बेटा। सिंप्लीफाई कर लूँ मैं, -2I1 भाई -2I2 -I2 टोटल -3I2 बच्चा इज इक्वल्स टू -1। दिस इज योर नेक्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अभी स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 एंड 3 को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। कैन आई से इक्वेशन 2 के पास I2 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है बेटा। इक्वेशन 3 के पास I2 का जो कोएफिशिएंट है वो है -3। तो क्यों ना स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन 2 एंड 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ। मैं इक्वेशन 2 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बाई 3। ओके, लेट्स सी आफ्टर दैट हाउ दैट इक्वेशन लुक्स। माइनस ऑफ 3I1 yes plus 3I2 is equals to students minus of 3 3s are you will get 9, yes you will get minus of 9। ये आपका हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब इक्वेशन 3 स्टूडेंट्स मैं एज इट इज लिख रहा हूँ -2I1 yes -3I2 बच्चों is equals to -1। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर यू स्टूडेंट्स, यस इक्वेशन 3 हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके, अब इसको सॉल्व कर ले बच्चों, इसको सॉल्व कर ले। प्लस कर ले इसे, यस प्लस करने के बाद कैसा, यस ये आप मेरे साथ साथ ट्राई करें स्टूडेंट्स। यस आपने दोनों को प्लस करना है, 4 को 3 के साथ इक्वेशन 4 विद इक्वेशन 3 प्लस कर लीजिए बच्चों। क्या मिलेगा -5I1 3I2 -3I2 कैंसिल हो गया बेटा। यस आपको मिलेगा बेटा -10। यू विल गेट I1 इक्वल्स टू सिंपल भाई माइनस माइनस कैंसिल 10 डिवाइड बाई 5 यू विल गेट 2 एम्पियर बच्चों। आपको स्टूडेंट्स I1 मिल गया। I1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर बेटा। yes 2 एम्पियर। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्टूडेंट्स I2। तो क्यों ना मैं I1 के जो वैल्यू है 2 एम्पियर उसे इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दूँ बेटा। तो माइनस ऑफ I1 है मतलब -2 प्लस I2 एज इट इज, इक्वेशन 2 ना बच्चों, प्लस I2 एज इट इज यस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या है बच्चों -3। टोटल करिए इसे, you will get students I2 is equals to -3 प्लस 2 यानी -1। yes I2 आपको मिलेगा बेटा -1 एम्पियर। तो आपको स्टूडेंट्स I2 भी मिल गया। yes I1 मिल गया, I2 मिल गया स्टूडेंट्स ना। लुक एट इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है I1 प्लस I2 विल गिव यू I। सो मुझे ढूंढना है स्टूडेंट्स I टोटल करंट I, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस I होगा स्टूडेंट्स I1 प्लस I2। यस I विल बी I1 प्लस I2 बच्चों। I1 इज 2 एज इट इज डाल दे बेटा। यस इट इज माइनस ऑफ 1, 2 माइनस 1 इज 1 बच्चों, 1 एम्पियर। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 यानी स्टूडेंट्स 1 एम्पियर। यस अमेजिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अमेजिंग क्वेश्चन। आपको आंसर मिल गया 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11, two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having respective internal resistances of 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send current in same direction. This is very important for connection of circuit students. Parallel so as to send current in same direction through external resistance of 5 ohm. We have to find current through that external resistance of 5 ohm students. First cell EMF is 1.5 volt. Okay. For cell number 2 EMF is 2 volt.
For first cell, internal resistance 1 ohm. For second cell, it is 2 ohm. 2 ohm students. ये लीजिए हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया एंड दे विल सेंड करंट इन सेम डायरेक्शन. कनेक्शन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, राइट. अच्छा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम गिवन स्टूडेंट्स, वो मैं लिख दूँ 5 ओम इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ओके, नाउ वी कैन थिंक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट्स. ऊपर वाले से I1 स्टूडेंट्स, नीचे वाले सोर्स ऑफ EMF से करंट I2. ओके, now the current flowing through external resistance 5 ohm is I. and students यही वो current है जो मुझे calculate करना है. so here our requirement is I is equals to question mark. okay students, this question is actually an application of Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law together. वैसे भी यहाँ पे 3 अननोन है बच्चों, I1 I2 एंड I, राइट. सो आई नीड 3 इक्वेशन. एक KCL से आ जाएगा, बचे हुए 2 KVL से आ जाएंगे. तो चलिए मैं लूप को नाम दे दूं बेटा ABCDE. ऊपर इतना सफिशिएंट है, ABCDE. ओके, नीचे वाले सेक्शन में चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे F और वहाँ पे G. अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे नाम दे दे so that it becomes easier to just apply KCL and even KVL. So let us start with application of KCL, KVL one by one बच्चों. फर्स्ट इक्वेशन KCL से मिल जाएगा बच्चों. KCL किरचॉफ्स करंट लॉ में अप्लाई कर दूँ एट जंक्शन A. ओके स्टूडेंट्स, एट जंक्शन A जो I है वो है आउटगोइंग करंट, जो I1 I2 है वो दोनों है इनकमिंग करंट. So I is equals to I1 plus I2. Total outgoing current is equals to total incoming current at the junction A. इक्वेशन नंबर 1 आ गया स्टूडेंट्स. अब मैं KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने वाला हूँ स्टूडेंट्स इन द अप्लाइंग KVL इन द अबो लूप स्टूडेंट्स. अबो लूप का स्टूडेंट्स मैं नाम दे दूँ आपके लिए. आई विल स्टार्ट विद ए के बाद बेटा B, आफ्टर दैट C, फिर D, फिर E स्टूडेंट्स. एंड जहाँ पे हम ये लूप स्टार्ट करें वहाँ पे फिनिश करना है बच्चों. A पे स्टार्ट किया, A पे फिनिश. अभी स्टूडेंट्स मैं B2C में देख पा रहा हूँ वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो मैं 2 लिख दूँ. ये लीजिए 2 लिख दिया मैंने. ओके, अब 2 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला है बच्चों वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, मतलब 2 इंटू करंट I2 बच्चों. ओम्स लॉ यूज़ कर लिया मैंने. ऊपर वाले ब्रांच को देखिए बेटा 1 इंटू करंट I1 एंड वोल्टेज है बच्चों 1.5 वोल्ट. और KVL का राइट हैंड साइड हम जानते हैं कि 0 आएगा. साइन कन्वेंशन यूज़ कर लूँ बच्चों में. 2 वोल्ट देखिए, यू आर गोइंग फ्रॉम B टू C यानी +2 -2 बच्चों. 2 इंटू I2 के लिए चेक करें. लूप इज गोइंग फ्रॉम B टू C, करंट जा रहा है उल्टा यानी पॉजिटिव. 1 इंटू I1 चेक करें बच्चों. 1 इंटू I1. लूप इज बेटा E टू A, करंट भी तो सेम डायरेक्शन होगा तो साइन आता है स्टूडेंट्स माइनस. एंड लास्ट में बच्चों 1.5 वोल्ट देख लो. यू आर गोइंग फ्रॉम E टू A, यू आर गोइंग फ्रॉम -2 प्लस यानी प्लस 1.5. और राइट हैंड साइड तो आपका 0 है बच्चों. ये KVL अप्लाई हो गया स्टूडेंट्स. थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर ले. -I1 प्लस 2I2, यस, -2 प्लस 0.5 बच्चों आपको मिलेगा -0.5. क्यों ना मैं उसे राइट हैंड साइड में लिख के +0.5 लिख दूँ बच्चों. +0.5. दिस इज माई इक्वेशन नेक्स्ट, यानी दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 बच्चों. यस, so now we have to apply KVL in another closed loop students, applying Kirchhoff's voltage law in that lower loop students. Then only you will get one more equation, right? KVL in lower loop students. lower loop का मतलब हुआ A, yes, F, G, D, C, P और लास्ट में बच्चों A. कहाँ से स्टार्ट किया था? A से. कहाँ पे फिनिश करेंगे? A पे. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स KVL अप्लाई करने के लिए तैयार बच्चों. 5 ओम रेजिस्टर का क्रॉस वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, मतलब 5 इंटू करंट है बच्चों आए तो 5I वोल्टेज हो गया. ओके, 2 ओहम के अक्रॉस वोल्टेज जो आएगा वो होगा V इज इक्वल टू IR बच्चों, मतलब 2 इंटू I2 करंट है वहाँ से, राइट.
और लास्ट में बच्चों EMF है 2 वोल्ट एज इट इज, राइट हैंड साइड ऑफ KVL हैज टू बी 0. साइन कन्वेंशन यूज करेंगे स्टूडेंट्स. लूप इज गोइंग फ्रॉम, टेल मी, F to G. करंट भी तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम होगा तो माइनस बच्चों. लूप इज गोइंग फ्रॉम C to B. करंट भी बच्चों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस. और वोल्टेज देख लो बच्चों 2 वोल्ट, यू आर गोइंग फ्रॉम C to B, यानी यू आर गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस. सो पॉजिटिव 2 स्टूडेंट्स एंड राइट हैंड साइड तो 0 ही है. चलिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर ले. I को मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2. I should be replaced by, yes, I1 plus I2 using equation 1 minus 2I2 as it is equals to प्लस 2 राइट हैंड साइड में जाएगा बच्चों माइनस 2. सॉल्व कर ले इसे. यस, सिंप्लीफाई करना है मुझे. माइनस 5I1, ओके, minus 5I2 minus 2I2 is equals to, you will get students minus 2. okay, simple algebra भाई. minus 5I1 मतलब minus 5I1 students minus 7I2, okay, equals to minus 2. This is your equation next 3. yes, equation 3 for you. स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को अब मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 में है माइनस ऑफ I1, इक्वेशन 3 में माइनस 5I1. तो क्यों ना हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट्स. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 5, आफ्टरवर्ड्स वो कैसा दिखेगा बच्चों, माइनस 5I1 प्लस 10I2 is equals to, students, you will get 5 into 0.5 यानी 2.5. I think this is equation next, यानी equation 4 students. Now I will be using equation 3 as it is students. Equation 3 यानी minus 5I1, okay, minus 7I2 is equals to minus 2. ये आपका equation 3 students हमने as it is लिख दिया, okay. तो स्टूडेंट्स नाउ माइनस 5I1 दिख रहा है, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों, सो माइनस 5I1 प्लस 5I1 हो जाएगा. यस, लेट मी सब्ट्रैक्ट. तो माइनस का प्लस बच्चों, ये माइनस का प्लस. चलिए सिंप्लीफाई कर ले भाई, अलजेब्रा यूज़ कर ले. यहाँ पे माइनस 5I1 प्लस 5I1 कैंसिल. I2 वाला टर्म देखिए बच्चों, 10 और 7 17 हो जाएगा. यू विल गेट 17I2 इज इक्वल्स टू 4.5. yes, 17I2 is equals to 4.5 student. that means you will get I2 का value is equals to 4.5 divide by 17 students. 17, yes, I2 मिल गया बच्चों. यूनिट डाल दूँ मैं करंट का, एम्पियर. I2 is equals to, I got 4.5 divide by 17 ampere students. yes, I2 तक हम पहुंच गए स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, I2 के हेल्प से I1 फाइंड आउट करना है. सो आई विल बी यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स. यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 नाउ. माइनस I1 मैं एज इट इज़ रखूँगा स्टूडेंट्स, माइनस I1 एज इट इज़, ओके, प्लस 2 इंटू I2 बच्चों, मतलब 9/70 इक्वल्स टू, यू विल गेट 0.5 यानी 1/2 स्टूडेंट्स. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ मैं. I1 बच्चों पॉजिटिव I1 हो जाएगा. 9/17 माइनस ऑफ बेटा 1/2. 9 टू सा बेटा 18, 18 माइनस 17 यानी 1 डिवाइड बाई 17 टू सा बेटा 34. सो आई गॉट 1/34 एम्पियर एज द वैल्यू ऑफ I1 बच्चों. मुझे भाई I1 भी मिल चुका. I1 इज इक्वल्स टू 1 divided by 34 ampere students. But our question tells us we have to find the current through the external resistance. मतलब students हमें ढूंढना है I. Now I have to use equation number 1 students. I होता है I1 plus I2. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों. I1 यानी 1/34 I2 बेटा 4.5 डिवाइड बाई 17. yes, 4.5 डिवाइड बाई 17.
तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए स्टूडेंट्स, I इज इक्वल्स टू 1/34 तो एज इट इज रहेगा, प्लस ऑफ स्टूडेंट्स you will get 9/34, 9/34. ओके, टोटल कर लीजिए बच्चों, कॉमन डिनोमीटर 34 आ जाएगा, 1 + 9 मतलब 10, 10/34 बेटा, 10/34 इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स 5/17, 5/17 एम्पियर. This is the value of I students. I got I is equals to 5/17 ampere. That means the current flowing through the external resistance of 5 ohm is equals to 5/17 ampere.